Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Trends High School and I am the science teacher of class 6. How are you students? I hope you all are doing great. Today we are going to start next topic of unit number 2, living organisms. And my topic is excretory system. Students, in our previous lecture we have done the understanding of some pages of unit number 2. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Excretory system, the process of removing harmful and poisonous waste substances produced by the body is called excretion. Lungs and kidneys are the main excretory organs of the body. Body से harmful और poisonous waste substances को remove करने का जो अमल है वो excretion कहलाता है और हमारी body में जो main excretory organs हैं वो lungs और kidneys हैं। The part of excretory systems are, excretory system के कुछ different parts हैं जैसे कि किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। प्रोसेस क्या है एक्सक्रीशन के लिए? ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस एंटर्स द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरीज। द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। इट फ्लोज बैक इनटू द रीनल वेन्स। वेस्टेड सब्सटेंसेस along with excess water pass down the ureter into the urinary bladder where it is stored for some time in the form of urine. When the bladder is full, urine is passed through the urethra. जो blood containing waste substances है वो enter होता है किडनी में वो यूरिनल आर्टरीज के थ्रू और फिर वहाँ पर blood filter होता है और waste substances जो है वो blood से remove हो जाते हैं और फिर वो blood जो removed waste वाला है साफ होता है, filter होता है, वो वापस renal vein से वापस चला जाता है हार्ट तक। The waste substances along with excess water, जो वेस्ट सब्सटेंस में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है वो पास हो जाता है यूरेटर में, फिर वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होता है एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। The next system is the nervous system. The nervous system controls and coordinates all parts of the body. It is made of specialized cells called neurons, which have the ability to carry messages from one part of the body to another. नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बॉडी पार्ट्स में, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है और इनमें एबिलिटी होती है मैसेजेस को कैरी करने की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। फॉर एग्जांपल हमें कुछ गर्म ठंडा महसूस होता है हमारे हाथों में तो वो मैसेज जो है वो विद इन अ सेकेंड से भी कम टाइम में हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन वापस वो मैसेज सेंड करता है कि हाँ ये चीज गर्म है या ठंडी है, आपको इसे हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना। ब्रेन क्या है? The brain is a part of central nervous system and is the main control center of the whole body. It is made up of nervous tissues which is hollow. It is located in the skull in a bony box called the cranium. It receives messages from the sense organs and sends orders to the muscles to produce suitable response. Brain central nervous system का एक part है जो कि control center है पूरी body का और ये बना होता है कुछ नर्वस टिश्यूज से और ये लोकेटेड है ब्रेन हमारा। स्कल एक बोनी बॉक्स है, क्रेनियम जिसे कहा जाता है, उस बॉक्स के अंदर ब्रेन मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है? रिसीव करना मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से और वापस ऑर्डर्स को सेंड बैक करना, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं। Then we have spinal cord after the brain. Spinal cord is also a part of central nervous system. It is a thick cord made of nervous tissue which passes through the backbone or vertebral column. It is connected to the brain at the top and as it passes down the vertebral column, it gives off millions of branches called nerves which carry messages between the body and the nervous system. एक thick cord होती है nervous tissues की जो पास कर रही है हमारे backbone या vertebral column को और ये connected होती है brain से top में और पास होती है vertebral column में और इसमें से काफी सारी branches निकल रही होती हैं
मिलियंस ऑफ ब्रांचेस कह सकते हैं हम नर्व्स जिसे कहा जाता है नर्व्स की, और ये कैरी करती है मैसेजेस बॉडी से ब्रेन तक और फिर ब्रेन से बॉडी। नर्व्स आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स which are covered by a tough covering of sheet. The nerves which carry messages from the sense organs to the central nervous system called sensory nerves. The nerves which carry messages to the muscles are called motor nerves. Nerves क्या होते हैं? Actually bundle of neurons होते हैं जो cover होते हैं एक tough sheet से। The nerves which carry messages from the sense organ, ऐसे nerves जो के sensory messages को carry करते हैं central nervous system तक, उन्हें sensory nerves कहते हैं, और ऐसे nerves जो के message carry करते हैं muscles तक, उन्हें motor nerves कहते हैं। यहाँ हम नर्व सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक नर्व सेल जो है वो कुछ इस तरह का होता है, बॉडी सेल है, इनमें कुछ यहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। शीट है, माइलिन शीट कहते हैं इसे, और नर्व्स है एंडिंग, और फिर नर्व एंडिंग होती है। इसी नर्व एंडिंग पे इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर आ जाता है और इसी तरह बहुत सारे नर्व्स मिलकर एक पूरा टिश्यू बना देते हैं, नर्वस टिश्यू बन जाता है। हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स, किस तरह से वर्क करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अ सेंस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल आई रिसीव्स अ सेंसेशन ऑफ स्टिमुलस लाइट, दिस मैसेज इज कन्वेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी nerve fiber. The central nervous system translates this message and then sends a message to a muscle or gland to produce a reaction or response. The path by which the message is received and a reaction is produced is called reflex arc. जो sense organ है, जैसे हमारी आई रिसीव करती है लाइट को, तो ये मैसेज कन्वे किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू। इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस मैसेज को ट्रांसलेट करता है कि ये क्या मैसेज आया है, और फिर वापस वो मसल्स तक वो रिस्पॉन्स देता है ताकि हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। ये जो पाथवे होता है मैसेज का जो कि रिसीव होता है और रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, उसे रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, दो तरह की होती हैं रिस्पॉन्सेज, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग और कफिंग व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट। ऐसे रिस्पॉन्सेज जो हमारी कॉन्शियस थॉट से नहीं होते, खुद ब खुद हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि छींकना, आंखें झपकाना, खांसी करना। ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते या हमारी बॉडी जो है उस पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस को इनवॉलेंट्री या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग और रनिंग टेक्स प्लेस बाय आवर ओन विल। ऐसे एक्शंस जो हम खुद से परफॉर्म करते हैं अपनी मर्जी के तहत, वो रिएक्शंस या वो एक्शंस जो हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं, जैसे बोलना, चलना, भागना, खाना पीना, ये सब हम अपने कंट्रोल में ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सरसाइज में हमें ब्लैंक्स गिवन है। नंबर 1 इज जाइलम इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड tracheae. Phloem is made up of thin walled tubes called dash is the evaporation of water from the stomata in the leaves of a plant. Transpiration, gaseous exchange in the lungs takes place in the alveoli. A thin walled blood vessel which forms a connection between an artery and a vein is called capillary. Food is broken down into simple soluble substances by the action of enzymes. Digested food is absorbed by the dash food in the small intestine. Digested food absorbed by the alveoli. The dash and kidneys are the main organs of excretion. Liver. The nervous system is made up of specialized cells called neurons. A dash action is an involuntary response which takes place without thinking. Reflex action. The path of nerve impulse is called a reflex arc. Sneezing and coughing are examples of involuntary reaction या involuntary action. Number 3 है name the parts of the digestive system. यहाँ लेबल करना है आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं। ए वाले को क्या नाम दिया जाता है, बी को, सी को, डी को, इस तरह आपने यहाँ पर ये फिलअप करना है। नेक्स्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।